When common man wants economic security and the economy is agrarian economy, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ता है कॉमन मैन की जेब पे? लगान का। फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज़ को नहीं लेना है। आप ये यूपीएससी का नेचर, क्योंकि आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो यूपीएससी का नेचर जान लो। यूपीएससी कैन सरप्राइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी के अंदर हमको वर्टिकल पीएचडी नहीं करनी है, वी हैव टू डू हॉरिजॉन्टल पीएचडी। हॉरिजॉन्टल पीएचडी मतलब कि कोई भी अगर टॉपिक है तो उसको एक हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव से बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक एफएक्यू अप्रोच, right? Basic 10 questions which pop up into your mind with respect to any particular topic, right? So therefore you should know answer to those questions. NCERTs जो हैं, खासकर की 11th और 12th की NCERTs, they are very dense books, right? Do not think NCERT, that they are like a very बच्चा level book, they are very beginner level book. No, अगर UPSC का ऐसा सिस्टम होता तो जितने भी लोग अपने स्कूल टाइम पे टॉपर्स रहे होते, UPSC would have said कि भाई आप आ जाइए, ऑटोमेटिकली यू बिकम IAS ऑफिसर, IAPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर्स, IFS, राइट? या फिर जो लोग यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे होते उनको डायरेक्टली बोल देते, ठीक है, कि आप आ जाइए, यू आर ऑल इंडिया रैंक 1, क्योंकि आप बचपन से ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हिमांशु खत्री, एक्स IRS, and today we are going to discuss a complete history strategy for UPSC 2027 and 2028, right? But I do not want this session to be like a rote learning session. तो मैं चाहता हूँ कि ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप हो। Now to develop that perspective, I have this thing in front of you. क्या एक्चुअली हम जानते भी हैं that why we are preparing for this exam apart from our personal reasons, right? We are preparing to get a job in an organization, and name of that organization is Republic of India, which is a state, right? Which was established on 26th of January 1950. ठीक है. So why there is history in the syllabus for the recruitment exam? तो बेसिकली ये जो हमारा देश है, ये जो हमारी कंट्री है, so different kind of states have ruled different sizes of the territory of our country, that is Bharat, India, right? Now all of those states, they came and they withered away. वो आए और वो चले गए. For the first time in the history, on 26 January 1950, we the people of India have given ourselves this state, that is Republic of India is a nation state. Will it also wither away? It shall not, it should not, right? And therefore जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं that what were the mistakes which were done by the previous states? Is there anything there which we can learn from the previous states, ताकि हमारा कल बेहतर हो, ताकि greater stability हो इस nation state की. Now if we come to the definition of a state, then state is an organization which rules a territory, a predefined territory, and its people. And always remember that common man does not want to be MP, MLA, minister. Common man wants economic security, physical security, and socio-cultural security, right? अब हम इस स्टेट में जॉब चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस है, इनफैक्ट पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है, वो इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, right? For example, if I talk about my subject, that is history. So when you talk about territory, so from that particular perspective, you see, in be it ancient, be it medieval, be it modern, be it world history, what becomes very interesting is maps, right? They are very important, right? Similarly, world history को भी आप इसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं. भाई, who is a superpower? The whole world history is about rise and fall of superpowers. Superpowers are like super states, right? Who rule, and if not directly rule, right? Who basically influence, dominate a very large territory, that is whole earth and its people, right? So therefore such kind of states, they are called superpowers, right? So from that particular perspective, maps become important. For example, be it ancient, be it medieval, be it modern Indian history, be it world history, be it post independence India, right? The maps are important. तो ठीक है, तो ये रीजन है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. ये रीजन है कि नेम्स ऑफ द प्लेसेस हैव चेंज्ड, राइट? जो पहले पाटलिपुत्रा, आज के टाइम पे वो पटना है, राइट? सो देयरफॉर language also becomes very important from this particular perspective, because what is the barrier between us and history? One important barrier
विच कैन बिकम अ कनेक्टर इज बेसिकली लैंग्वेज, राइट? क्योंकि जगहों के नाम बदल चुके हैं, रिवर्स के नाम बदल चुके हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट, हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, right? So therefore, for smooth functioning of the state and also for understanding history, right, language becomes very very important. That is why from this language comes out terms based question or terminology based questions, right? So there is a rationale for everything, ठीक है? तो जैसे एंशियंट मिडिवल में टर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्यों? क्योंकि तब की लैंग्वेज और अब की लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क है। जब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तब तक हम उन स्टेट्स को नहीं समझेंगे और वहाँ से सीख नहीं लेंगे। सिमिलरली अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स, राइट? सो जब एंशियंट पढ़ते हैं तो इस चीज़ पे फोकस आता है कि भाई व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस चीज़ की ट्रेडिंग होती थी, ठीक है? व्हाट गुड्स वर ट्रेडेड, राइट? व्हाट वाज द डोमेस्टिक इकोनॉमी लाइक, वाज इट एग्रेरियन इकोनॉमी, was it industrial economy, what was the contribution of the artisans, right? So therefore economy becomes important. Similarly अगर आप medieval की बात करते हैं और modern की बात करते हैं, then you get into the land revenue systems, because initial phase में मतलब हमारी economy largely agrarian economy थी, Britishers ने भी industrialize नहीं किया as such, right? So therefore when common man wants economic security and the economy is agrarian economy, तो सबसे ज़्यादा impact किस चीज़ का पड़ता है common man की जेब पे? लगान का, right? Ownership of land का, right? So therefore land revenue systems, they become very very important, that whether the land revenue was oppressive, what was the method of collection, determination, right? So therefore all of these things, they become important, right? तो ये हमें चीज़ें जाननी है, because आज के टाइम पे भी economy is very very important. Always remember, good economics is good politics, right? And therefore अगर हमारे नेशन स्टेट की इकोनॉमी सही नहीं होगी तो हमारा नेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा, राइट? सेकेंड आस्पेक्ट कम्स अबाउट फिजिकल सिक्योरिटी, राइट? सो जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट फेमीन्स, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भी वाई दे वर रिकरेंट फेमीन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है? तो फिजिकल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सोशो कल्चरल सिक्योरिटी। नाउ सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू द कॉमन मैन, राइट? तो यहाँ से हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या टॉपिक्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस फिलोसफीज, सो बुद्धिज्म, जैनिज्म, दे बिकम इम्पॉर्टेंट, राइट? कल्चर में आपका आर्ट एंड कल्चर, राइट? सो देयरफॉर art and culture, it has a connection with polity also, it has a connection with economy also, तो उनकी वो खैर इंटरट्वाइनिंग भी रहती है, ठीक है? सो फिलोसफीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? रिलीजियस फिलोसफीज, वो खैर रिलीजन बोल दिया वहाँ पे, ठीक है? बट रिलीजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल व्हाट वर द बेसिक टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, व्हाट इज द बेसिक टेनेट्स ऑफ जैनिज्म, राइट? एंड अदर काइंड ऑफ रिलीजियस फिलोसफीज ऑल्सो लाइक चारवका एटसेट्रा, तो उनके बारे में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं, ठीक है? फिर आर्ट एंड कल्चर में भी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, राइट? यू हैव स्कल्पचर्स, यू हैव पेंटिंग्स, राइट? लिटरेचर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके अलावा इकोनॉमी के एंगल से एक और देखें तो व्हाट वर द डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट टाइम्स, राइट? इन मिडिवल टाइम्स। सो देयरफॉर हमारा जो सारा का सारा सिलेबस है वो इसी स्ट्रक्चर के अराउंड जो है वो रोटेट करता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे तो उससे में ये आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली विच पर्टिकुलर टॉपिक इज मोर इम्पॉर्टेंट, विच पर्टिकुलर टॉपिक इज लेस इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड ऑलवेज रिमेंबर, वाई इज always and always important, and second most important thing or equally important thing is impacts. तो why पे हमेशा हमें फोकस रखना है और impacts पे हमेशा फोकस रखना है। how पे भी questions आते हैं but relatively थोड़े से कम आते हैं, ठीक है? तो analytical bent of mind से we have to prepare because UPSC also asks questions in that particular manner only, right? So from that particular perspective, let us begin this session. So for example, अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल अगर होते हैं तो ब्रॉडली ठीक है, ये पीपीटी, दिस पीपीटी विल बी अवेलेबल टू यू, बट मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि जीएस पेपर 1 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। उसमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है? तो वहाँ से मोर देन 50% क्वेश्चन दे कम इन द प्रीलिम्स, राइट? अब उसके अंदर अगर हम एमैक देखते हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब पूरा हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट देखते हैं तो रफली 15 to 16%, ठीक है, जो है प्रीलिम्स के अंदर आपका हिस्ट्री आता है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, राइट? एंड योर सिलेक्शन कैन बी प्लस और माइनस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है।
and it's not just about marks also. Those who do not understand their history, they will not be able to build a better future. वो तो क्या चलो थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का स्टेटमेंट हो गया, अदरवाइज यूपीएससी में इंटरलिंकेजेस बहुत हैं। भाई देखिए ब्रॉडली हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री बिफोर 1947 अगर बात करूँ तो इट इज़ नथिंग बट जनरल स्टडीज़ बिफोर 1947। तो उस हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, राइट, इकोनॉमिक्स, मतलब सब सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, राइट। ओवरऑल लर्निंग्स क्या है, अगर हम पिछला चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है एंड हाउ मच ROI दैट यू गेट, दैट इज ऑब्वियसली इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट दैट ROI is still 50% only. That means if someone is able to crack AMAC, that is Ancient Medieval Art and Culture, then a very significant edge is available to that student, right? But हाँ ये है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट, दैट इज़ द कंटेंट, वो जो है काफ़ी ज़्यादा है, एंड वहीं पे कहीं ना कहीं गाइडेंस का और इन सब चीज़ों का रोल आता है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी सिलेबस डिसेंटली बड़ा है, बट ROI की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। सेकेंड आस्पेक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि विद इन AMAC जो मिडीवल है उसका रिलेटिवली लेस वेटेज है लास्ट के 3 साल में, ठीक है, बट फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज़ को नहीं लेना है। आप ये यूपीएससी का नेचर, क्योंकि आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यूपीएससी का नेचर जान लो, यूपीएससी कैन सरप्राइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे हमें गाइडेंस लेनी है, राइट, बट that does not mean that we will totally neglect any particular topic or any particular component of the syllabus, ठीक है। किस पे ओवर फोकस करना है वो तो यहाँ से पता चल जाता है, बट एक अबव एवरेज लेवल तक हर सब्जेक्ट हमको प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। सो देयरफॉर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टडी एवरीथिंग बट यस यू कैन ट्यून द फोकस। उसके बाद क्या है कि यूपीएससी का नेचर एक आप अभी जान लें, ठीक है, यूपीएससी इज नॉट रूट लर्निंग, ठीक है। अगर यूपीएससी का ऐसा सिस्टम होता तो जितने भी लोग अपने स्कूल टाइम पे टॉपर्स रहे होते, यूपीएससी वुड हैव सेड कि भाई आप आ जाइए, ऑटोमेटिकली यू बिकम IAS ऑफिसर, IAPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर्स, IFS, राइट। या फिर जो लोग यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे होते उनको डायरेक्टली बोल देते, ठीक है, कि आप आ जाइए, यू आर ऑल इंडिया रैंक 1, क्योंकि आप बचपन से ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हो। तो इस चीज़ का बड़ा हमको ध्यान रखना है कि यूपीएससी में पढ़ना कैसे, ठीक है। तो एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड चाहिए, एंड आज के टाइम पे वैसे भी विद एडवेंट ऑफ AI, ठीक है, तो मतलब योर एनालिसिस हैज़ टू बी मच मच बेटर, राइट। फैक्ट्स तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, यू कैन ईजिली आस्क AI दैट गिव मी दीज फैक्ट्स, राइट। सो देयरफॉर द वाई पार्ट ऑफ थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए एनालिटिकल माइंड हमेशा रखना है हमें। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी के अंदर हमको PhD नहीं करनी है, बट हमको वर्टिकल PhD नहीं करनी है, वी हैव टू डू हॉरिजॉन्टल PhD। हॉरिजॉन्टल PhD मतलब कि कोई भी अगर टॉपिक है तो उसको एक हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव से बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक FAQ अप्रोच, right, basic 10 questions which pop up into your mind with respect to any particular topic, right, so therefore you should know answer to those questions, right। and अभी हम आगे देखेंगे डिक्शनरी, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें यूपीएससी कई बार पूछता है, डिक्शनरी ऑफ टर्म्स, राइट। सो बिल्कुल आपको जो है वाई पे फोकस करते हुए चलना है, रोट लर्निंग पे फोकस नहीं रखना है, अदरवाइज हिस्ट्री विल बिकम एक्सट्रीमली बोरिंग फॉर यू, राइट। ये एक और प्रूफ है, अभी तो यूपीएससी पूछने लग गया ऐसे क्वेश्चंस की एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है लिटरली, राइट। तो ऑप्शंस ऐसे देने लगा है दैट ऑल 3 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, राइट। सो देयरफॉर इसलिए वाई अंडरस्टैंडिंग से हमको पढ़ना है, ठीक है। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में स्टैंडर्ड आप देखिए कि आर्ट एंड कल्चर 3 to 4 क्वेश्चंस, राइट, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री 3 to 5 क्वेश्चंस, तो वहाँ कहीं ना कहीं इक्वल है। एंड फिर सेकंड ईयर पे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आ जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी इफ यू विल पिक अप एनी बुक, सो देयरफॉर एनी स्टैंडर्ड बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट, राइट, तो यूपीएससी ने ऐसा तो बोला नहीं हुआ ना कि वी विल आस्क लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे तो देयरफॉर वर्ल्ड हिस्ट्री इन इटसेल्फ इज अ प्रीटी वर्दी ऑफ बीइंग अ फुल थ्रॉटल सब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, राइट, इतना मोटा किताब उसका हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर गाइडेंस काम आती है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से सोर्सेज हमको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, राइट।
एंड यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस में देखेंगे तो GS1 के अंदर जो कि 250 मार्क्स का होता है, सो हेयर वी हैव रफली 30 to 40% वेटेज ऑफ हिस्ट्री कॉम्पोनेंट. सो देयरफॉर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव आई होप आई हैव एस्टैब्लिश कि 15 से 16 से 17% राइट आपके प्रीलिम्स में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एंड 30 से 40% आपके मेंस में, GS1 के मेंस में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, राइट. तो हिस्ट्री को छोड़ तो कोई भी नहीं सकता है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट. अब बुक लिस्ट और रिसोर्सेज पे अगर आए, ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखना होली ट्रिनिटी का. ठीक है, क्या बेसिक फॉर्मूला है? पहली तो चीज़ हो जाती है आपकी एनसीईआरटी. मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ना है, बट 3 चीज़ें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, एनसीईआरटी, सेकंड सारथी का रिसोर्स, ठीक है, एंड थर्ड जो है दैट वी विल एंश्योर, राइट, विच इज अ स्टैंडर्ड बुक, तो दैट वी विल एंश्योर दैट इट बिकम्स ऑप्शनल फॉर यू, right? So we'll try to accommodate all the components, right, of the subject into the Sarthi's resource, ताकि आपको कोई standard book जो है वो पढ़ने की आवश्यकता ना हो, right? You are not required to read any standard source, right? However, if you are such a student who is able to understand only once you have read a standard book, then well, that is your personal nature, and you should follow your personal nature. ठीक है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट रिक्वायरमेंट इज नॉट गोइंग टू बी देयर एट ऑल इफ यू हैव डन न्यू एनसीईआरटीज एंड सारथीज रिसोर्स, राइट. स्ट्रक्चर क्या रहेगा पढ़ने का? स्ट्रक्चर पढ़ने का यही रहेगा दैट स्टेप नंबर वन में आपको जो है फाउंडेशन की क्लासेस करनी है, राइट. फाउंडेशन की क्लासेस व्हेन यू विल डू, सो ऑब्वियसली यू विल गेट सारथी आईएएस रिसोर्स आल्सो. Now these two things are actually more than good enough, right? But new NCERT क्या है ना कि एक मतलब एक बेंचमार्क सा होता है ना नॉर्मल यार कि यू आर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यू हैव नॉट डन NCERT ऑल्सो, राइट. तो स्टेप नंबर 1 में यू आर गोइंग टू डू फाउंडेशन कोर्स, राइट. यू आर गोइंग टू in parallel you are going to focus on the Sarthi IAS resource, and once this particular aspect is complete, right, once you have to a decent level you have understood the subject, right, after that, right, you are going to focus on the new NCERT. Now if you are going to follow this trajectory, so this will take at max 2 hours, राइट. यू विल बी रीडिंग एनसीईआरटी एंड आपको लगेगा अच्छा ये वाला पेज मुझे आता है, ये वाला टॉपिक मेरे को आता है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है. तो ओनली एक काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा, एंड उसमें अगर आप थोड़ा बहुत हाईलाइट या थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन ऑफ सम ग्लॉसरी टर्म्स एटसेट्रा वो करना है तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है. एनसीईआरटीज जो है खासकर की 11th और 12th की एनसीईआरटीज, दे आर वेरी डेंस बुक्स, राइट. डू नॉट थिंक एनसीईआरटी दैट दे आर लाइक अ वेरी बच्चा लेवल बुक, दे आर वेरी बिगिनर लेवल बुक, नो. Right, my optional was psychology. I read NCERT of psychology, and then I did my coaching etc, right. So fine, I'm like okay, but once I completed my coaching, after that when I again read the NCERT of psychology, and I was like so flabbergasted, right, by that book कि मतलब मेरे को लगा कि किस चीज़ को मैं हाईलाइट ना करूँ. ईच एंड एवरी सेंटेंस आई कुड कन्वर्ट इनटू अ पैराग्राफ, राइट. तो एनसीईआरटीज को आप ऐसे मत सोचें कि वो बिगिनर लेवल बुक्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. देयर आर हाईली डेंस बुक्स, राइट, खास करके 11th-12th की, राइट. तो यहाँ पे इस तरीके करेंगे तो एनसीईआरटी का जो बेस्ट आपका यूटिलिटी है दैट यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट, राइट. सो फाउंडेशन कोर्स सारथी आईएएस का रिसोर्स करना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह वो सब की प्रैक्टिस चलेगी, तो उसके बाद आराम से कहते हैं न्यू एनसीईआरटी. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कोर्स खत्म हो जाए, बट हाँ एटलीस्ट व्हेन अ टॉपिक इज ओवर ओनली देन यू मूव टुवर्ड्स द न्यू एनसीईआरटी, राइट. Which new NCERTs are to be picked up, that also we will discuss, but that is how it is. Now coming back to our topic of discussion, तो बुक लिस्ट और ये सब देखते हैं अगर, तो जैसा मैंने बताया कि होली ट्रिनिटी में हमारी कोशिश रहेगी कि स्टैंडर्ड बुक का जो लोड है वो आपके ऊपर ना रहे, सारथी का रिसोर्स और उसके बाद में न्यू एनसीईआरटी, ठीक है ना. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं न्यू एनसीईआरटी से, और उसके अंदर अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए अच्छे अच्छे टूल्स हैं, ग्लोसरीज वगैरह अच्छा दे रखा है, तो उस तरीके से पॉप आउट विंडोज एटसेट्रा अच्छा है, खासकर की आर्ट एंड कल्चर में. तो आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी इज़ वेरी अमेजिंग. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो एनसीईआरटी है वो बहुत अमेजिंग है, ठीक है. तो दे आर वेरी गुड बुक्स. इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी है आचार्य अर्जुन देव की, इट्स एन अमेजिंग रीड,
राइट। तो एनसीईआरटी दे आर नॉट बिगिनर रिसोर्स, दे आर अमेजिंग सोर्सेज। एंशियंट हिस्ट्री में अगर बात करें तो न्यू एनसीईआरटी है आपका थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 1, राइट। सो देयरफॉर वो आपको करनी है क्लास 12 की, ठीक है। सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस ये है वी बिगिन पढ़ाने के टाइम पे तो विल बिगिन विद स्टोन एज, बट यूपीएससी के हिसाब से मेजरली इट इज लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अर्ली स्टेट्स, मैंने आपको बताया स्टेट क्या होता है, स्टेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रूल्स अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल, राइट। सो देयरफॉर and economies, again you notice this is coming from UPSC syllabus। मैंने आपको बताया ना, common man does not want to be MP MLA minister, common man wants economic security, physical security, socio cultural security, right। so economies की बात हो रही है, ठीक है, socio cultural aspects की बात हो रही है, ठीक है, maps वगैरह ये सब भी चीज़ें आएंगे, states की बात हो रही है। तो look at the terms which are used by the UPSC, ठीक है, in its syllabus, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब आप ये वीडियो देख लें तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल अच्छा राइट टाइम रहेगा कि वंस यू हैव सीन दिस वीडियो, आफ्टर दैट यू ओपन द यूपीएससी सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, राइट, एंड देयर यू ट्राई टू हाईलाइट, अंडरलाइन, ठीक है, इन लाइन विद द वीडियो दैट वी हैव मेड हियर, राइट। सो उस तरीके से यू विल गेट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि अच्छा मैंने एक बार सिलेबस भी देख लिया, ठीक है। रिसोर्सेज बता दिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, हमारा फोकस रहेगा कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी ना करनी पड़े, आपका इन दोनों सोर्सेज में ही आपका काम हो जाए। अदरवाइज आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी जो है बोली जाती है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। आर्ट एंड कल्चर में मैंने बताया आपको न्यू एनसीईआरटी इज वेरी अमेजिंग, ठीक है। उसका जो पार्ट 1 है क्लास 11th का, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, दैट इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू पार्ट 2, ठीक है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पढ़ना इसको कैसे है, आर्ट एंड कल्चर को, तो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने का बेसिकल तरीका ये है, अच्छा सोर्सेज मैं बता देता हूँ। लुसेंट्स की जनरल नॉलेज है, जीके, इसमें खाली एंशियंट और मिडिवल वाला पार्ट है। नितिन सिंह यानिया, ठीक है, एक फेमस राइटर है, ठीक है, मेरे से 1 साल सीनियर क्वालिफाई किया था उन्होंने, ठीक है, वी गेव इंटरव्यू टुगेदर ऑल्सो। तो इसके अंदर भी हाई प्रायोरिटी है कुछ चीज़ें, जैसे इंडियन आर्किटेक्चर, टेम्पल स्टाइल्स हो गए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, ये इनको रिलेटिवली लो प्रायोरिटी मिलती है, फेयर्स को, फेस्टिवल्स को। तो ये थोड़ा सा सिलेक्टिवली करना है। अगर करंट अफेयर्स में कोई भी चीज़ आ जाती है, ऑब्वियसली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो चीज़ें करना। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में एक चीज़, चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वॉट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट in art and culture is that if you are going to do it in a standalone manner, then it will become nothing but rote learning, right? So you don't have to do art and culture like, okay, this is a list of temples, right, this is a list of types of paintings, ठीक है, उस तरीके से आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर उसके वो बन जाएगी रूट लर्निंग। Why it will become rote learning? The reason for that is there will not be any context, right? Context, it is provided by your actual history, that is your ancient history and medieval history, right? So if you do not do ancient and medieval, right, then you will not be able to understand the different kind of art forms which are there, ठीक है, क्योंकि इससे आपको context मिलता है और इसको आपको बड़ी सारी चीजें, इसके अंदर क्या क्या relations हैं। For example, if there was a state, right, which was a stable state, right, which was a strong state, right, then it would give patronage to art and culture, right. It can promote a particular kind of religious philosophy, right, particular kind of literature would come up, right. Developments can take place in science and technology also, right. Developments, they can take place in literature also. Development can take place in different kind of art forms, राइट। सो व्हाई? बिकॉज द स्टेट विल बी अ स्टेबल स्टेट, राइट। तो हमें उन स्टेट्स पे, इससे हमें एंशिएंट के बारे में, मिडिवल के बारे में क्या पता चलता है, जहाँ पे स्टेट जो था वो स्ट्रॉन्ग था, राइट, स्टेबिलिटी थी, रिलेटिवली लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टेट था, तो वहाँ पे जो है ये सब टाइप की जो चीज़ें हैं उनका डेवलपमेंट रिलेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एंड नेचर ऑफ द रूलर हमको पता होगा, ठीक है, उनकी फिलॉसफी हमको, उनकी आइडियोलॉजी हमको पता होगी, देन वी विल बी एबल टू एक्चुअली हैव अ sense that why a particular kind of temple architecture developed here, why the temples were created, right, what was the utility, right, of for the ruler that he is going to fund construction of some super big structures, right, what did they want out of it, right। तो अशोका क्यों चाहेगा कि उसके मतलब एडिक्ट्स हों, ठीक है ना, तो क्या रीजन था, तो वो सब चीजें वी गेट टू नो फ्रॉम
द हिस्ट्री पार्ट, एंड उससे आपका आर्ट एंड कल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, जब आप एमैक करेंगे तो एमैक के अंदर सबसे पहले एंशंट करेंगे और मिडिवल करेंगे। स्टेप नंबर 2 में जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ में जो आपका एंशंट है और मिडिवल है उसको भी देखेंगे, राइट। एंड थर्ड साइकिल में जब भी हम एंशंट और मिडिवल करेंगे तो पैरेलली हम आर्ट एंड कल्चर को भी करेंगे। ठीक है, मतलब ये जब हम रिवीजन जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे, थर्ड वाला जो पार्ट है ये एलिमेंट है आपका रिवीजन का। ठीक है, ये चीज को रिवीजन में भी फॉलो करना है और स्टेप नंबर 1 में भी फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका मतलब व्हाट इज द लर्निंग, लर्निंग ये है कि आपको आर्ट एंड कल्चर एज स्टेप नंबर 1 नहीं उठाना है, आपको सबसे पहले एंशिएंट उठाना है, आपको फिर मिडिवल उठाना है, उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे आर्ट एंड कल्चर उठाना है, नंबर 1 पे आर्ट एंड कल्चर नहीं उठाना है। ठीक है, सो देयरफॉर दैट बिकम्स रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरी एक और चीज है, अब भाई मतलब मुझे ये समस्या बड़ी आती थी कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम एन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड तो यार हमें कैसा पता चले कि कौन सी मुद्रा में एक पर्टिकुलर डांसर डांस करता है। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक, आई डू नॉट नो ना, राइट। तो क्योंकि और जब वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं ना उस चीज़ को, ठीक है, कभी कभी आप किसी आर्ट फॉर्म को टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो एक लेमैन के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी टफ टू एक्चुअली इमेजिन वॉट द राइटर वॉन्ट्स टू राइट। इनफैक्ट उसकी भी खुद की डिक्शनरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सबसे पहली बार व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग एंशिएंट एटसेट्रा एंड देयर दे विल डिस्कस द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरीज, राइट। सो PGW पेंटिंग पॉटरी, उसका BRW ब्लैक एंड रेड वेयर, यू आर लाइक व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस, I have no idea about it, right? So till the point of time you'll not be able to imagine कि ये क्या है। उसमें बोलेंगे कि it had a shiny slip, it had this kind of slip, you like कि what is slip here, right? We are discussing pottery, right? So therefore ये सब चीजें एक पूरी proper dictionary है with respect to different kind of art forms, right? तो वो इसमें एंशिएंट और मिडिवल में और आर्ट एंड कल्चर में, स्पेशली एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर में डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड मिडिवल में भी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जांपल स्टेट, राइट, स्टेट इज ऑर्गेनाइजेशन दैट रूल्स टेरिटरी। अब जैसे आज के टाइम पे हमने नाम रखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमने नाम लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब उनके स्टेट स्ट्रक्चर में एंशिएंट एंड मिडिवल में देवर डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स विच वर देयर, राइट, बट उसमें भी रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, आज का सिस्टम तो हमको पता है ना, बिकॉज वी आर इनटू ब्यूरोक्रेसी। इसीलिए ओवरऑल स्टेप नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इससे भी पहले स्टेप नंबर 1 में विल बी स्टार्टिंग विद MIH। ठीक है, सो दैट वी बिकम अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, राइट, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट स्ट्रक्चर एटसेट्रा, ताकि जब हम स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर एंशिएंट और मिडिवल में जाएं तो डिफरेंस जो है बस सिर्फ लैंग्वेज का रहे, एंड वी विल बी एबल टू मेक सेंस, राइट। फॉर एग्जांपल MIH में इफ यू हैव रेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट, लोकल गवर्नमेंट्स, तो एंशिएंट पे जब हम समितिज के बारे में पढ़ेंगे देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बस सिर्फ लैंग्वेज का एक डिफरेंस रहेगा, राइट। कॉन्सेप्ट जो है उनके अंदर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्ट्री वो टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के अंदर कॉन्टिन्यूटी है, हाँ, उनका जो टर्मिनोलॉजी है, राइट, दैट चेंजेस, राइट। सो इसलिए सबसे पहले MIH, उसके बाद एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर आर्ट एंड कल्चर, एंड फिर इस तरीके से, राइट। सो देयरफॉर दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट। ठीक है, तो उसकी वजह से एक बार आपका आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली नितिन सिंघानिया में काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स एंड डायग्राम्स एटसेट्रा दिए हैं विच हेल्प अस इमेजिन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट on your own also, ठीक है, let's say something comes in the current affairs, तो you go to the CCRT website, ठीक है, तो इट्स अ डिजिटल सोर्स, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो उसमें विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो सेक्शंस हैं, कम से कम यू विल बी एबल टू इमेजिन देम वेरी वेरी वेल, एंड बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट सोर्स, राइट, सो देयरफॉर क्वेश्चंस जो है वो वहां से आराम से आते हैं। ठीक, मिडिवल में जैसे बात करी हमने, सो इन मिडिवल इट इज गोइंग टू बी अगेन न्यू NCERT एंड सारथीज रिसोर्स विल बी देयर, और यहाँ पे सतीश चंद्रा की किताब होती है वो देख सकते। मॉडर्न हिस्ट्री में न्यू NCERT एंड सारथी रिसोर्स,
शेखर बंदोपाध्याय रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है हमारी साइड से करने की, बट हाँ इफ देर इज चॉइस बिटवीन शेखर बंदोपाध्याय एंड बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड इफ यू आर आवर स्टूडेंट, तो आप फिर शेखर बंदोपाध्याय जस्ट एज अ रेफरेंस बुक आप उसको रेफर कर सकते हो। रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिकॉज इन द रिसेंट टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड like direct questions from शेखर बंदोपाध्याय in both prelims as well as mains, राइट। मेंस में तो एक बार चैप्टर का नाम मेनी वॉइसेस ऑफ नेशन, उससे क्वेश्चन आ गया था, राइट। सो एंड सेंट्रिस्ट बुक है, बिपिन चंद्रा इज एक्सट्रीम लेफ्ट विंग बुक, राइट, सो विच इज नॉट इन लाइन विद द यू नो इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। वन एक्सट्रीम आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम आई डोंट रिकमेंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये बस अगर आपको कोई फोमो है, फ्रैंकली इसको आप भूल जाओ। सिर्फ न्यू एनसीईआरटी और सारथी का रिसोर्स अगर आप करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगेन आरओआई बहुत कम है। वर्ल्ड हिस्ट्री में प्योरली एंड प्योरली यू रिलाई ऑन सारथीज रिसोर्स। हाँ, आपको फॉरेन अफेयर्स पसंद है, यू लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, आउट ऑफ चॉइस यू वांट टू रीड, लाइक पर्सनली आई फाइंड इंटरनेशनल रिलेशंस लाइक वेरी अमेजिंग। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन आचार्य अर्जुन देव, एंड यहाँ पे कुछ न्यू एनसीईआरटीज भी हैं, ठीक है। उसमें वो पूरी नहीं पढ़नी है, बट उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू इट, ठीक है। ये बहुत हैवी बुक है, नॉर्मल नोवे, ये मैंने पढ़ी है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सारथी के रिसोर्स में इससे इन सब से इंस्पायर्ड आपको एक जगह पे यू गेट स्टफ, राइट। सो देयरफॉर दैट्स अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के केस में भी जैसे आपको बताया कि जो इसकी एनसीईआरटी है बहुत अमेजिंग है, ठीक है, ये मस्ट रीड है, ठीक है। तो दिस न्यू एनसीईआरटी इज अ मस्ट रीड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारथीज रिसोर्स, ठीक है। सो बाकी इसमें अच्छी बात यह है इन बोथ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कि रिलेटिवली मतलब पैटर्न जो है, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में स्टेट इंटीग्रेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, वो मतलब एक रिकरेंट सी थीम है, ठीक है। सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी रेवोल्यूशंस, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टू वर्ल्ड वॉर्स, इंटर वॉर पीरियड, राइट, फिलोसफीज लाइक सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फाशिज्म, नाजिज्म। तो ब्रॉडली अभी तक इन चीज़ों पे फोकस रहा है 2013 से, ठीक है। तो देयरफॉर वी विल बी एबल टू हैव अ टारगेटेड अप्रोच, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। हाउ टू स्टडी एमएक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। इसमें रोट लर्निंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम एनीवेयर, राइट, फ्रॉम अस और ऑन योर ओन सेल्फ स्टडी भी आप अगर कर रहे हैं, तो ancient medieval art and culture में the first thing that you should do is you should make a word file or any other digital app etc of what of dictionary, ठीक है। कैसे? जैसे जैसे पढ़ते जाओ, कोई भी टर्म आया, ठीक है, विच यू डू नॉट नो, राइट, एनी काइंड ऑफ टर्म, राइट, विच यू डू नॉट नो, स्टार्ट मेकिंग इट्स डिक्शनरी, ठीक है। आप एआई का यूज करो, ठीक है, फाइंड आउट इट्स मीनिंग and in your own language, right, and maybe you can find a photograph also, depends कि अगर कोई art form वगैरह है, you start bringing all of these things into this word file, right, and keep it at a place कि आप अपने मोबाइल से भी उसको easily मतलब उसको cloud पे रखना, so that you are able to update it at any point of time, you are able to do control F, right, this will really help you, ठीक है। जब भी रिवाइज करोगे, अरे यार इस वाले वर्ड का मीनिंग क्या है, गो टू डिक्शनरी, लुक इट अप, अंडरस्टैंड, देन अगेन यू रीड द सेंटेंस, तब अंडरस्टैंडिंग से के साथ उस सेंटेंस को पढ़ोगे, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत मस्ट चीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू फोकस अपॉन इट। क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे अगर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई फोकस ऑन लेट्स से, सॉरी, तो इसके अंदर चलो ब्रॉडली आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सी इज इन टर्मिनोलॉजी, राइट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट दीज टर्म्स आर एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, सिग्निफिकेंट प्लेसेस एंड मैप्स, राइट। आई टोल्ड यू कि मैप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन हैज चेंज्ड, राइट, एंड देयर वर डिफरेंट स्टेट्स हु रूल डिफरेंट टेरिटरीज, राइट। तो वो जगह को इमेजिन करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे एक और चीज़, another thing that you need to do is, apart from the dictionary aspect, second thing that you need to do is you create a word file
You create a word file of maps. ठीक है, so therefore you should have a different set of maps belonging to different time periods, ताकि जब भी आप रिवाइज करें एंड देर इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर किंगडम, राइट, जैसे अवंती, राइट, तो कहाँ पे है भाई वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आपको रखना है। हरप्पन सिविलाइजेशन में धोलावीरा, कहाँ पे यार धोलावीरा, ठीक है, नहीं पता, ठीक है। तो इसी तरीके से बीट एंशंट, बीट मिडिवल, ठीक है। अब एक ही जगह का नाम है, जैसे आंध्र प्रदेश आज के टाइम पे हम जानते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे इट वाज पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, राइट। एक टाइम पे इट केम टू बी नोन एज, इट बिकेम पार्ट ऑफ गोलकोंडा, right, when it was under Mughals, right. Then it became Nandan Sarkar's when it was taken over by the Britishers, right. Then it became part of Madras presidency. Then today we have Andhra Pradesh, right. तो basically names change, तो इसलिए बड़ा important हो जाता है ancient, medieval, modern Indian history में, right. एंड आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब चीज़ें एक्चुअली आप विदाउट मैथ्स मतलब समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप जो है, ये कोई वन डे एक्सरसाइज नहीं है, एज यू आर प्रिपेयरिंग आपको इन पे फोकस करना है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी, मैप्स, ठीक है, और देखो कितना बड़ा आपका आरओआई रहेगा, ठीक है। ये काम आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है, हर्षा ज़ेरा एटसेट्रा इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है, उधर मौर्यन पीरियड इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? मौर्यन एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, गुप्ता एम्पायर वॉज वेरी वेरी लार्ज, राइट। पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। एंड एक ट्रेंड देखा जा रहा है, वो ट्रेंड बेसिकली है, अच्छा वैदिक पीरियड का इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, बट उसमें हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो मतलब रिलेटिवली कम है, ओरल हिस्ट्री है, ठीक है। सॉरी, मतलब मैं मिक्स कर गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है रिटर्न हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं। एंड वैदिक पीरियड में जो है ओरल हिस्ट्री है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो उस तरीके से रिलेटिवली लेस पूछा गया है, बट हो सकता है कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट विच इज देयर। कंसिस्टेंसी एरियाज दिखाया हमने, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ कुछ एक गैप्स भी देखने, देखो वो जो स्लाइड थी ऊपर, उसमें आप चेक करना। तो बेसिकली अगर ये एस्टैब्लिश्ड है दैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन कम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, दिस इज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अभी देखो 2022, 2023, 2024 नो क्वेश्चन केम, एंड देन वन क्वेश्चन पॉप्ड अप इन 2025। तो अगर टॉपिक इस टाइप का नहीं है, जैसे प्री गुप्ता और पोस्ट मौर्यन पीरियड टॉपिक ही कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैदिक पीरियड में टॉपिक दिख रहा है कि कम इंपॉर्टेंट है, बट बाकी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी ऐसे टॉपिक में, ठीक है, 2-3 साल बीत जाते हैं वेयर दे हैव नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है दैट दे विल आस्क अ क्वेश्चन, राइट। सो देयरफॉर प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, right. These are certain sample questions, right. For example, if I pick this up, 2024 में it was asked from ancient, which of the statements given are correct? First is there are no parables in Upanishad. Now a student who does not know the meaning of the word parable, right, तो वो तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो डिक्शनरी बनानी है ना, उसमें जो भी शब्द आपको कठिन लगता है, विच एवर वर्ड यू फाइंड टफ, राइट, दैट शुड बी पार्ट ऑफ दैट डिक्शनरी। नाउ with respect to English language, we are all at different levels, right. So therefore ये डिक्शनरी बहुत ही पर्सनल होगी, ठीक है। तो आप अपने आप को ये फोर्स मत करो दैट आई हैव टू ओनली मेक डिक्शनरी ऑफ दोज टर्म्स विच आर वेरी लीगल इन नेचर, ठीक है। पैरेबल्स आर बेसिकली स्टोरी, सिंपल स्टोरी विद ह्यूमन कैरेक्टर्स, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। तो इस तरीके से अगर हम एंशिएंट का भी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, एक पैटर्न अगर हम देखते हैं, एंशिएंट मतलब ए मैक पूरा ही देख लेते हैं। तो एक चीज हमने क्या देखी यहाँ पे कि कंटेंट और थीम ऑफ लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे उपनिषद में पैरेबल्स हैं नहीं,
सेकेंड थिंग दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज टाइमलाइन एंड क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से यू शुड डू योर PYQ एनालिसिस कि क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ते टाइम किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगेन टर्मिनोलॉजीज, राइट। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरगट्टा was a water bag made of leather pulled over a pulley, large wheel with earthen pot driven by bullocks, water bucket pulled by hand. Such a simple, you would see, very simple kind of statements are there. But what is the complexity? Complexity is the word aragatta, right? So therefore I have proven to you what becomes important. Dictionary becomes important. They are asking questions from there. Next that we have is ki who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Mattavilasa, Vichitrachitta and Gunabhara, right? So again that is part of terminology again. Okay. Then significant places and maps with reference to ancient India. Consider the following pairs: territory and river, right? So basically these are like Avanti, Kosala, these are like name of the states, name of the territories, right? So again what becomes important, names of rivers have changed, names of states have changed, right? So again what becomes very very important is like names, location, important geographical features, okay? That is basically what you call as maps. तो अगर मैप्स बनाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता, ठीक है? मैप्स बिल्कुल हैंडी होने चाहिए, यू शुड बी एबल टू लाइक लुक एट देम वेरी वेरी क्विकली. देन मौर्यन पीरियड से अशोकन इंस्क्रिप्शंस suggest that the Pradeshika, Rajulka and Yukta were important officers. So as I told you कि today the way we have district magistrate, superintendent of police, right, governors, होम मिनिस्टर एटसेट्रा, तो उस टाइम पे अलग टर्मिनोलॉजी होती थी, तो वो वाली टर्मिनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो टर्म्स में अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा एग्जांपल ऑफ टाइटल्स, हमने देखा नेम ऑफ द ऑफिशियल्स, राइट, और स्टेट रिलेटेड टर्म्स, state related terms are there, right? Right, state related terms, organizational terms, ठीक है, terms which are there of different types of equipments like aragatta, right, or anything, so therefore etc. So these dictionary is extremely important, that we are able to say. See, फिर गुप्ता पीरियड में ancient Fine, right, the Chinese pilgrim traveled to India during reign of, again it becomes what becomes important, this is a time period, the chronology, so chronology and important things which happened in that time period, right? Chronology and within a particular kingdom during the time period of a king, which are the important things which have taken place, right? So therefore important things, important kings, right, important people, राइट. सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसमें. फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन देखें तो एंशिएंट इंडियन टाउन वेल नोन फॉर इलेबोरेट वाटर हार्वेस्टिंग सीरीज ऑफ डैम्स, राइट. तो अगेन कुछ हॉलमार्क्स हैं, राइट, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट सिटीज़ थे उनके कुछ कुछ हॉलमार्क्स हैं, राइट. तो उसमें द टाइप ऑफ इसको क्या बोलेंगे, इसको मतलब एक हमें हॉलमार्क्स पता होने चाहिए, राइट. हॉलमार्क्स पता करने का तरीका ये है कि भाई कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सोचोगे अच्छा इसके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, राइट, या फिर खुद ही से ही सोचोगे कि यार मुझे याद करना है, ठीक है, आई नीड टू डिफरेंशिएट हरप्पन सिटी फ्रॉम धोलावीरा, फ्रॉम लोथल, तो मैं किस आधार पे याद रखूँ, मतलब मुझे कैसे याद रहेगा, ठीक है. तो बेसिकली उसके हॉलमार्क्स जो है, साइट्स के हॉलमार्क्स याद रखते हैं हमको, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आगे अगर चलते हैं तो खैर ठीक है. Then if you look at art and culture में what becomes the most important, तो consistently हमको दिख रहा है कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, रिलीजन, फिलोसफी एंड लिटरेचर, लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा रिलीजन फिलोसफी पे फोकस कम हुआ है एंड लिटरेचर एंड लैंग्वेज में फोकस बढ़ा है. देयर इज कंसिस्टेंसी इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, राइट. पेंटिंग्स, ये शुरुआता टाइम पीरियड 2015 से 19 थोड़ा सा डोमिनेट किया, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है. अब जैसे मैंने बताया कि
अब यूपीएससी हो सकता है वापस से ट्रेंड चेंज करे, बट जब तक नहीं चेंज होता है तब तक वो कुछ नहीं हम कर सकते हैं। यूनेस्को इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कैटेगरी वो एक्चुअली बाकी जगहों पे चला गया, बट यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एंड रिसेंट टाइम से तो दो बैक टू बैक क्वेश्चंस, मतलब दो क्वेश्चंस पूछे 2024 में, ठीक है। तो बजट में और बाकी जगह में जब भी कोई यूनेस्को में साइट लिस्ट होती है, कोई भी आर्ट फॉर्म लिस्ट होती है यूनेस्को में, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच इज है। एक्चुअली क्या है कि साइट्स वगैरह वो सारी चीज़ें ना उधर ये आर्ट फॉर्म्स के रिलेटेड है, अदरवाइज यूनेस्को से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दे आर पार्ट ऑफ एंशंट एंड मिडिवल ऑल्सो। सेकेंड प्लेसेस भी एंशंट और मिडिवल में कवर हो जाते हैं, तो इसका दोनों कोई मतलब नहीं। ब्रॉडली हमको ये समझ में आता है कि पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट्स दे आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, लिटरेचर, रिलीजन, आर्किटेक्चर, इन दोनों के अंदर ग्रेजुअली फोकस इस पे बढ़ रहा है, इसमें हल्का सा कम हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पे कहीं ना कहीं हमको इक्वल फोकस रखना है, ठीक है। ये चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, फेयर्स, फेस्टिवल्स, मार्शल आर्ट्स, राइट। तो देखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर नया ट्रेंड बनता है नहीं, ठीक है। गैप अलर्ट यहाँ पे भी वैलिड है। क्या है गैप अलर्ट? गैप अलर्ट ये है दैट इन 2025 इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर, लैंग्वेज से 2026 में पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। ज़्यादा फोकस तो रिलीजन, फिलोसफी पे आना चाहिए, क्योंकि ये भी दो गैप ईयर से फिर दोबारा गैप ईयर है। तो खैर यू कैन अब ऐसा 100% कोई गैस नहीं कर सकता है, तो अपना हार्ड फोकस थोड़ा सा ट्यून इन करना है। इसके क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ठीक है, द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल, राइट, नोन एज डांसिंग गर्ल, तो हॉलमार्क है ये एक्चुअली हरप्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। टाइटल इसको आप टर्म भी समझ सकते हैं, ठीक है। फाउंडेड मोहनजोदारो, इज मेड ऑफ, राइट। सो देयरफॉर कोई भी तीन चीजें आप याद रखेंगे डांसिंग गर्ल के बारे में, तो ये उसका ऑलरेडी पार्ट होगा, तो आपको हॉलमार्क्स की फॉर्म में याद रखना है। देन रिलीजन, फिलोसफी, आई टोल्ड यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गौतम बुद्ध वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, राइट। तो अगेन ये टाइटल्स के अंदर आ गया, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा, राइट। सो कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो उसके की वर्क्स क्या हैं, तो हॉलमार्क्स ऑफ राइट। सो पर्सनैलिटीज में की वर्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कब उन्होंने वो वर्क लिखा, आइडिया किया, एंड अंडर विच किंग, क्योंकि सर वी गेट टू नो अबाउट द पैटर्नेज, वी गेट टू नो अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। Then we have the first Gandharva. Firsts are always important, right? Firsts are always important. Always remember, in general, in history, firsts, right? They are always important, right? Patterns are always important. First are always important, right? तो इसके अंदर the first Gandharva Mahavidyalaya music training school was set up in 1901 by Vishnu Digambar Paluskar in, राइट। सो फर्स्ट आर इम्पॉर्टेंट, एंड उस टाइम पे म्यूजिक की ट्रेनिंग लिए एक हॉलमार्क है कि उस टाइम पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। देन पेंटिंग में अगेन देखें तो मुगल एम्पर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम, तो विच एम्पर, तो विच किंग, तो आर्ट एंड कल्चर में अगेन ये चीज़ हो जाती है कि हॉलमार्क मतलब फॉर एग्जाम्पल king and the art form, right, or literature or anything which was patronized by a king, that becomes important, right. kingdom associated with life of Buddha places में हो चुका है, ठीक है। मिडिवल में आते हैं अगर, तो एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो नेम ऑफ द ऑफिसर्स एंड दोज थिंग्स, ठीक है। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस आए, ठीक है। बाकी मुगल्स जो क्वेश्चंस आए वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी कवर हो गए, ठीक है। बाकी दिल्ली सल्तनत, भक्ति सूफी, तो मेजरली हमारा फोकस अगेन टर्म्स पे हमको फोकस रखना है, एंड थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर एंड स्मॉलर किंगडम्स के ऊपर जो है आजकल क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन पे फोकस रखना हमने, ठीक है ना। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो कोई ऐसा आउटलायर नहीं है जो कम इम्पॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज, अगेन टाइटल, who of the following rulers of medieval gave permission to Portuguese to build a fort at Bhatkal, right? So from this particular perspective, another thing that becomes important is what you call as foreigners. फॉरनर्स बिकम इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया था कि फाहीन, ठीक है, या मैगजीन्स, राइट, तो इन लोगों ने उस टाइम के बारे में क्या लिखा, इन लोगों ने कौन सी किताब लिखी, या फिर फॉरेन ट्रेड, राइट,
इनके फॉरेनर्स के वर्क या किस किंग के टाइम पीरियड पे ये फॉरेनर्स आए, ठीक है, इन्होंने फिर दूसरी चीज फॉरेन ट्रेड, trade becomes important, right? Trade routes, they become important. What was traded, that is what was imported, what was exported, right? That becomes important. क्यों? Because the trade etc ये सब होता है तो it becomes a source of influence in art and culture, right? In state and all of these things also, diplomacy etc, ठीक है, what was imported, what was exported, right? So therefore these things they become important, right? मैं अभी साइड हो रहा हूँ, जिसको फोटोग्राफ इसका लेना है वो ले सकता है, ठीक है। तो खैर अब आगे चलेंगे। अगेन विच फॉरेन ट्रैवलर डिस्कस्ड व्हाट, अगेन सेम थिंग, मंगोल इन्वेजन्स, फॉरेनर वाला एलिमेंट आ गया। फर्स्ट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो देखो फर्स्ट इन्वेजन के बारे में कुछ है, ठीक है, बिसीज दिल्ली, राइट, एंड मतलब लॉस्ट टेरिटरी, तो मतलब वो स्टेट से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेट इज ऑर्गेनाइजेशन दैट रूल्स अ टेरिटरी, लॉस्ट टेरिटरी, बिसीज दिल्ली, टेरिटरी, राइट। सो टेरिटरी एस्पेक्ट वो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड देयर, राइट। भक्ति सूफी मूवमेंट में अगेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे यहाँ पे क्या है कि संत निम्बरका वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा कि विच पर्टिकुलर पर्सन वॉट किंग एंड आर्ट, राइट। पर्सनैलिटी अगर कोई है तो व्हेन दैट पर्सनैलिटी वॉज, किस किंग के टाइम पे वो चीजें थी, ठीक है। सो देयरफॉर दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर लिस्ट ऑफ यू नो दीज आर सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चीजें आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी बेसिकली वी हैव डिजाइन दिस क्वेश्चंस ताकि आप इसको आपको एक फ्लेवर मिल पाए, ठीक है, कि जो लोग ऑलरेडी इनिशिएटेड हैं फॉर एग्जांपल दे कैन गेट अ फ्लेवर कि अच्छा किस किस टाइप की चीज़ें मतलब में, तो ऐसे इफ़ यू वांट टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन तो दैट विल लाइक पुश यू इनटू द आर्ट एंड कल्चर एमैक प्रिपरेशन मोड, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इफ़ वी सी, सो मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रॉडली देखा जाए तो प्रिलिम्स में ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाई दे आर इंपॉर्टेंट? क्योंकि our present day administration, our present many of our laws, they are inspired by the state structure as it was built by the company first and then by the British state, right? So therefore, and otherwise also पूरी UPSC में, because life of a bureaucrat is governed by law, ठीक है, तो कहीं पे भी लॉ पॉलिसी इस टाइप की चीज़ आती है तो इट डेफिनेटली बिकम्स इंपॉर्टेंट। गांधीयन फेज ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस अगर एक एवरेज देखा जाए 2015 से। उसके अलावा फिर मोर लेस इक्वल ही है, मतलब मैं यहाँ पे लेफ्ट का और वर्किंग क्लास का रिलेटिवली लेस है, और ये मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि क्लासीफाई नहीं हो पाए। स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी अच्छा ROI है, ठीक है, तो एक ही मूवमेंट है बट 5 क्वेश्चंस वी हैव सीन है, राइट। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अगेन छोटा टॉपिक है बट यूजुअली कहाँ पे फैक्ट्री थी, कहाँ पे नई फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री कौन थी, तो दीज आर द थिंग्स विच ट्रबल द स्टूडेंट्स, बट इफ डन देन काफ़ी अच्छा ROI यू विल बी एबल टू गेट एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, राइट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी बेस्ड अभी लास्ट ईयर मेन्स में भी UPSC ने पूछा, ऑल्दो दिस इज प्रीलिम्स का चार्ट, ठीक है, तो मेन्स में उन्होंने पूछा महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, दे आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, राइट, तो दे आर इंपॉर्टेंट। सोशो रिलीजियस मूवमेंट कभी गायब हो जाती है, 3-3 साल के गैप में गायब हो रही है, 3 साल गायब, ये 3 साल गायब, अब आया तो प्रॉब्ली 2026 में कुछ आना चाहिए, 2027 में फिर गायब हो जाएंगे, ठीक है, देखते हैं अगर वैसा पैटर्न रिपीट होता है तो। बट ये बहुत मेंटली टैक्सिंग टॉपिक है यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए, सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, राइट। तो कंसिस्टेंसी एरियाज, एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट, पर्सनालिटी न्यूज़ आपको नहीं मिस करना है, ऐसा कई बार देखा गया है, जैसे मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए, राइट। मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, देवर इन न्यूज़, राइट। लेस इंपॉर्टेंट जो है वर्किंग क्लास में ट्रांसफर ऑफ पावर 1939 के बाद हुआ, पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन हैं। क्रोनोलॉजी अभी कभी कभी वो पूछ लेते हैं, क्रोनोलॉजी में एग्जैक्ट ईयर का उतना इशू नहीं है, बट एक पैटर्न अगर क्रोनोलॉजी पे पूछे ना तो पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, तो वो तो आपके अगर नोट स्ट्रक्चर्ड बनेंगे ऑटोमेटिकली क्रोनोलॉजी हो जाएगा उसके अंदर। क्रोनोलॉजी इन जनरल इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने लेस इंपॉर्टेंट रखा है बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री में रिसेंटली लेस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, right, since 2015, past 7 years, right, 6 years, right. So maybe a new trend has begun on questions like what was the economic impact of British rule, because usually we think कि ये mains related aspect है, तो again why पे focus करके हमको करना है, ठीक है।
तो खैर ये सब एनालिसिस है, ये चीज़ें बाद में आती हैं, हमें ये देखना है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना हिस्ट्री की, तो हमें पढ़ना कैसे, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखना अगेन with reference to Government of India Act 1935, right? So what becomes important? Acts, law becomes very very important. Law and state structure, right? जो स्टेट रिलेटेड टर्म्स एंड डिक्शनरी, एंड फिर आगे भी अगर हम करें तो स्टेट रिलेटेड कोई भी चीज हुई, ठीक है, बी टर्म्स, राइट, बी द फर्स्ट टाइम समथिंग इज ब्रॉट, राइट, territory, it becomes important, right? Acts and laws, they become extremely important, right? Different kind of personalities like viceroys etc, right? कि कौन सी चीज किस वाइसरॉय के टाइम पे हुई थी, they become important, right? तो ठीक है, Government of India Act, sedition has become my religion was the famous statement. Again personality becomes important in MIH में अगर हम देखें, वो लास्ट वाली शीट थी वो एमैक की थी, अभी MIH पे आ गए, राइट। सो हेयर पर्सनैलिटीज आर इंपॉर्टेंट, बीट मीन्स, मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल्स दिए, बीट मीन्स, राइट। तो इनके मतलब इनके हॉलमार्क्स, ये जो स्टेटमेंट मैं बोलूँ भाई इसका हॉलमार्क है, ठीक है, ठीक है, हॉलमार्क्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। की वर्क्स, वर्क्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज़पेपर, किसने कौन सा न्यूज़पेपर बनाया, ठीक है, कोई मैगजीन, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी ने स्टार्ट करी, ठीक है, तो कोई बुक किसी ने लिखी, ठीक है। सो देयरफॉर आइडियोलॉजी बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। की अचीवमेंट्स वो हॉलमार्क्स में मान लो, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सनैलिटी वर्सेस पर्सनैलिटी, दैट इज A वर्सेस B, right? This dominates in mains also and this dominates in prelims also, right? Then consider the following statements about Ram Raman Roy, again वही personality हो गया, personality है, right? Economic aspects, land revenue is a very very important thing, land revenue policies, economic policies, drain of wealth related things, that what was drain of wealth, who gave drain theory, right? So these kind of things they become important, right? ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था फॉरेनर्स का, फॉरेनर्स यहाँ पे भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो फॉरेन एंगल है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, फॉरेनर्स, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, लो हैंगिंग फ्रूट है। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्योंकि यूजुअली वी आर अवेयर अबाउट मॉडर्न टाइम्स, तो इशू नहीं आता है, ठीक है। करंट अफेयर से प्रभावित है ये, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे उस टाइम पे सेलिब्रेट हुआ था 2023 में, तो एक इंटरमिक्सिंग, तो हमें क्या दिख रहा है कि करंट, दैट इज लिंकेज विद करंट। For example, why did we decide to that our constitution will get will become a law, right? Will get enacted on 26 January 1950, जबकि वो तैयार हो चुका था on 26 November 1949, right? So links with current, right? तो वो सब चीज़ क्यों, क्योंकि वो हिस्ट्री में इट वाज डिसाइडेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन है, अगेन करंट से प्रभावित है। रिसेंटली वी हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 November 1949 एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट। तो ये चीज़ें करंट से प्रभावित हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट्स आई हैव टोल्ड यू, जहाँ पे भी हिस्ट्री में आए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया तो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। देन वी हैव पेजेंट रिवोल्ट्स, कम क्वेश्चंस आते हैं उसमें, बड़ा सिंपल सा मुंडा उलुगुलन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड उलुगुलन, तो इसमें भी जहाँ पे भी कोई यूनिक डिक्शनरी टाइप की चीज़ आती है तो यहाँ पे भी हमें एक डिक्शनरी बनानी है टर्म्स की, ठीक है। सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज हाउ इट इज लार्जली, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। मेन ट्रेंड्स में अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फोकस एनालिसिस पे है, कंपैरिजंस ऑफ पर्सनैलिटी, आइडियोलॉजीज, राइट। आर्ट एंड कल्चर में रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं,
ठीक है, द क्वेश्चंस दे ऑफन डिमांड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट्स में एक मैक्रो पर्सपेक्टिव, एक एवोल्यूशन से काफ़ी वो लोग पूछते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि नेग्लेक्ट नहीं करना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जैसे स्टेट इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी आ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टैंडर्ड है 3 रेवोल्यूशंस, 2 वर्ल्ड वॉर्स, इंटर वॉर पीरियड, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे आ रहे हैं। दीज आर सम सैम्पल क्वेश्चंस विच आर देयर ऑन मेंस, ठीक है, इन मेंस लाइक एंशिएंट में देखें तो डिस्कस द सीलियंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर, तो वो हॉलमार्क्स उस तरीके से हम पढ़ेंगे जैसे हम प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हमको करनी है, मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी, ठीक है। तो जो चीज़ें एक्चुअली व्हाट आई मेड यू राइट डाउन, ठीक है, ऑन द बोर्ड, राइट, दैट इज एक्चुअली कॉमन to prelims as well as mains, right? For me, prelims is about small whys, small impacts, right? Small house, and mains is about larger whys, larger impacts and larger house, right? तो काफ़ी simple straightforward question है। notes अगर हम structured बनाएंगे, उस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है, तो वैसे ही बनेंगे। इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आपको इसका भी फोटोग्राफ लेना है मतलब तो आप ले सकते हैं, बट येस ये सेम ये चीज़ें दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट। मिडिवल में एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स, अगेन हॉलमार्क आ गया, ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ अकबर। फिर आर्ट एंड कल्चर में द स्कल्प्टर्स फिल्ड चंदेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलिएंट विगर, तो चंदेला आर्ट फॉर्म किया तो उसके हॉलमार्क्स, राइट। तो आर्ट फॉर्म है उसके हॉलमार्क्स, कोई पर्सनैलिटी कोई किंग है उसके की हॉलमार्क, कोई भी 5 बातें कोई भी 6 बातें एंड उनका मीनिंग की वो बातें क्यों थी, वाई, तो यू विल बी एबल टू आंसर, राइट। सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू वुड हैव टू कंबाइन एथिक्स, राइट, इट्स अ इंटर सब्जेक्ट क्वेश्चन, एथिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको यू वुड हैव टू कंबाइन, ठीक है। महात्मा ज्योतिराव फुले, तो महाराष्ट्र असेंबली ने हस्बैंड वाइफ महात्मा ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले, उनको मतलब दे हैड रिकमेंडेड देयर नेम फॉर भारत रत्न, राइट। प्लस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट महात्मा ज्योतिराव फुले's एनिवर्सरी बीइंग सेलिब्रेटेड, तो करंट में आया है, ठीक है। trace India's consolidation process during the early phase of independence, so वही integration of states, right, consolidation एक मतलब एक broad term, तो इस पे मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, we will cover it in a decent manner. Again a question on revolutions, right, so therefore that is how it is, right. So I've taken enough time of you, right. All the best my friends, ठीक है। हिस्ट्री कैन बी इंटरेस्टिंग, इट डज नॉट हैव टू बी रोट लर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से वी शुड डू एनालिसिस ऑफ PYQs एंड डे 1 पे अगर हमें कोई ये बातें बता दे, मुझे अगर कोई बता देता तो काफ़ी सही रहता, तो ठीक है। आई थॉट आई विल कम्युनिकेट दिस टू यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।